प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਐਪ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PSCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 12th ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ 2x2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ 3x3 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 4.2, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा डैश ਜਾਂ ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈ 1 3 6 -9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀਤਾ 1 3 6 9। ਸੋ 2x2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, -9 × 1 -9 -6 3 ਦਾ 18 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ -27 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਈਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਲਮ 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੋਲਮ, ਦੂਜੀ ਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ 1 6 3 -9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 × -9 -6 3 ਦਾ 18 ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -27 ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਡੈਲਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਈ, -27 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, if any two rows or two columns are interchanged, अपने को की है, then sign of determinant changes। सो साइन बदल जाएगा बच्चे, जो कोई भी दो रो ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਲਮ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ 3 4 6 8 0 9 5 6 2। चलो मैं एक्सपैंड करने लगा 3 पहली रो पहला कॉलम 0 -54 -4 भी हम पहली रो दूसरा कॉलम अपने को 8 to the 16
माइनस 9 5 का 45 प्लस 6 सो ए रो ए कॉलम छड़ दिए 8 6 का 48 माइनस 0 भी ए हम 3 ਨੂੰ 54 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 3 4 ਦਾ 12 1 कैरी 3 5 ਦਾ 15 16 आ जाएगा भी 162 आ जाएंगे इधर 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਘਟਾਣੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ 45 ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ 9 ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਏ 2 29 ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ भी इधर 6 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 8 6 48 4 आंसर 6 चुका 24 ਤੇ 4 28 288 आ गए माइनस माइनस प्लस 9 चुका 36 3 आंसर 4 दूनी 8 ਤੇ 3 11 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ 8 ਤੇ 6 14 1 आंसर 8 ਤੇ 1 9 ਤੇ 1 आंसर ਸੀਗੇ 10 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ ਇਹ 404 आ गया अपने को माइनस 162 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਏ 2 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਧਰੋਂ ਕੈਰੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 4 ਇੱਥੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਇਹ 242 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਦੋ ਰੋ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਦੋ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ 8 0 9 3 4 6 थले 5 6 2 एज इट इज ही सो इन एक्सपैंड कर लगा 8 ये 4 टू द 8 माइनस 6 6 36 अपने लिए 36 आ जाऊगा भी माइनस 0 ये 6 माइनस 30 आ जाऊगा भी प्लस दे 9 6 30 18 माइनस 20 आ जाऊगा ये अपने को माइनस दे 28 आ जाएंगे 8 के 36 घटाई 0 ना मल्टीप्लाई हो गए ये 0 ही रह जूगी रकम ये 9 ये माइनस दे 2 भी 8 8 64 6 आंसर 8 दूनी 16 ते 6 22 ते 9 दूनी 18 इन्होंने ऐड किया सो कहने का मतलब की हो गया ये नैगेटिव ऑफ डेल्टा आ गया डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू नैगेटिव ऑफ डेल्टा कहने का मतलब मैं कोई दो रो इंटरचेंज की तो उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू के साइन में फर्क आ गया वो प्लस का सी तो माइनस का हो गया अपने को सो जो भी आप कोई दो रो जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते होवांगे जो भी आप कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज किए आपस च अगे नैगेटिव लग जूगा जे ये ऑपरेशन दो बारी आ नैगेटिव नैगेटिव प्लस दे हो जाया करने ठीक है सो नैक्सट प्रॉपर्टी करते हैं अगे थर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है if any two rows or columns in a determinant are equal then value of determinant is 0 जे अपने को कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम डिटरमिनेंट के इक्वल हो गए तो डिटरमिनेंट वैनिश हो जाएगा ठीक है उनकी वैल्यू की आ जाएगी 0 इन्हीं मैं एग्जांपल दे के दसदा अपने को 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सो इहदे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल भी सो हुण आपां एक्सपैंड करके मैं दसदा जो आप प्रॉपर्टीज यूज करते होवांगे आइडेंटिकल हो गया आप इनकी सीधी वैल्यू 0 लगा दिया करेंगे पर इतने फिर भी मैं तुहानूं एक बार सॉल्व करके दस देना इनकी वैल्यू 0 आएगी एक्सपैंड करके 1 पहली रो पहला कॉलम छड्या 6 टू द 12 15 आ गए माइनस 2 ये छड्डे 6 माइनस 12 प्लस 3 5 माइनस 8 12 चो 15 घटाए माइनस दे 3 2 6 माइनस 12 माइनस 6
माइनस दे 3 आ गए भी, -3 ये प्लस दे 12 हो गए, माइनस दे 9 हो गए, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -3 ਤੇ -9, माइनस दे 12, आंसर की आ गया 0 आ गया। सो जे कि दो कॉलम भी सेम होणगे ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ r1 ਐਂਡ r2 ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ, देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। सो ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। नैक्सट प्रॉपर्टी ते चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट प्रॉपर्टी की है अपने को कोई डिटरमिनेंट है KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ k ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੋ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ k ਡੈਲਟਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਲਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो जे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸੇ रो ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ k ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ। ठीक है, सिमिलरली फॉर कॉलम्स। ठीक है, सो ये रिजल्ट याद रखना है। इन्हें मैं 2x2 ना लैके तुहानू एग्जांपल दस देना। फॉर एग्जांपल अपने को ए मैट्रिक्स हैगी है, ए का डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करना 2 3 4 5। सो इनकी वैल्यू अपने को की आएगी -2 आ गई। ठीक है, हुण मैं की कीता इनू एक 2 नाल मल्टीप्लाई करता सारे मल्टीप्लाई r1 बाय 2। सो मैं पहली रो नू 2 नाल मल्टीप्लाई करता, ये नवा डिटरमिनेंट आ गया, इन्हू डेल्टा का नाम दे लिए। डेल्टा 1 जिहड़ा आया ये 2 2 दा 4 2 3 दा 6 आ डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है भी, हुण नू आपां सिंपलीफाई करिए 20 - 24 ये -4 आ गया, आप मल्टीप्लाई 2 नाल किया, ये अपनी k की वैल्यू हो गई। कहना मतलब 2 × -2 ए -2 किंदी वैल्यू सी डेल्टा की। सो कहना मतलब जो डेल्टा 1 है वो 2 × डेल्टा आ गया अपने को। सो ये रिजल्ट की है, जो किसी रो या कॉलम में आप किसी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करांगे जो उनका आंसर आऊगा वो k टाइम्स वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट आ जाऊगा। नैक्सट प्रॉपर्टी से चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने को फिफ्थ प्रॉपर्टी है भी, फिफ्थ प्रॉपर्टी की है सम प्रॉपर्टी है भी। सम प्रॉपर्टी है ये की है अपने को A1 + k A2 + k A3 + k B1 B2 B3 C1 C2 C3। अपने को किसी रो दे विच कोई कॉन्स्टेंट सेम नंबर है जिहड़ा वो ऐड हुंदा होया जां सबट्रैक्ट हुंदा होया। ठीक है, सो ये आपां किवें करांगे, ये अलग अलग A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस k नीचे B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो कहने का मतलब की है जी नीचे वाली दो रोज है वो दोवें डिटरमिनेंट के एज इट इज आ जाएगियां। पहले डिटरमिनेंट के A1 जो पहला मैंबर आए हैं A1 A2 A3 वो आ जाएंगे, तो जो सेम नंबर आया वा k वो k हो सकता, कोई 5 हो सकता, वो प्लस पा के जो इतने माइनस होया इतने माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आप इतने वो वैल्यूज है जिहड़ियां वो k वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अपने को x + 3 है y + 3 है z + 3 है, नीचे है 4 5 6 7 8 9। सो अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी अपन किवें लिख सकते हैं x 4 7 y 5 8 z
6 9 प्लस नैक्सट अपने को 3 4 7 3 4 7 3 5 8 3 6 9 सो इनू आप इस तरह लिख सकते हैं। नैक्सट है अपने को प्रॉपर्टी 6 है वो करते हैं। सो ये सम प्रॉपर्टी होगी। नैक्सट लास्ट प्रॉपर्टी है अपने को डिटरमिनेंट है प्रॉपर्टी अपने को लास्ट है 6 है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये अपने को डिटरमिनेंट है। अपने को एक होल डिटरमिनेंट है A1 प्लस K C1 A2 प्लस K C2 A3 प्लस K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये मैं डिटरमिनेंट किमें ऑब्टेन किया। मैं इतने R1 पहली रो ते ऑपरेशन लाया की ऑपरेशन लाया R1 प्लस K इंटू R3 मैं पहली रो दे विच थर्ड रो नू K नाल मल्टीप्लाई करके उहदे विच ऐड करता तो इस तरह ऑपरेट करने किसी सिमिलरली अपने को कॉलम वास्ते भी है जे आप किसी कॉलम नू किसी दूसरे कॉलम के नाल किसी कॉन्स्टेंट नाल मल्टीप्लाई करके ऐड करांगे तो जी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनएल्टर्ड रही है वो सेम रही है उनकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पैंदा। इसकी आप एग्जाम्पल करते हैं अपने को ए मैट्रिक्स है ये आप डिटरमिनेंट ही कैलकुलेट करते हैं 3 -6 9 7 सो इनकी वैल्यू है जी अपने को की है 3 7 का 21 माइनस 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 प्लस होगा 9 6 का 54 54 आ गया भी 4 ते 1 5 5 ते 2 1 75 आ गया भी। हुण मैं इहदे ते ऑपरेशन लाना पहली रो ते ऑपरेशन लाया R1 प्लस 2 R2 मैं ऑपरेशन लाता इहदे ते पहली रो दे विच मैं की ऐड किया दूजी रो नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करता हुण ए 3 चलो इत्थे लिख देना 3 प्लस 2 9 का 18 फिर -6 प्लस 7 2 नाल गुणा करनी आप 14 ये आप हुण पहली रो ते ऑपरेशन लाया वा ठीक है। फर्स्ट रो अपने को एज इट इज ही आ जाएगी ठीक है। सैकेंड रो एज इट इज आ जाएगी फर्स्ट रो ते ऑपरेशन लगा सो फर्स्ट रो के एलीमेंट है जी एंट्रीज वो चेंज होणगियां 21 ये 8 आ जाऊगा भी ये 9 ते 7 आ गया इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करिए 21 नूं 7 नाल गुणा 7 एकम 7 7 दूनी 14 माइनस 8 नाम 72 7 दे विचों 2 गए 5 7 -2 5 14 -7 सो दोवां दी वैल्यू की आ गई सेम आ गई। सो इन्हों आप से डेल्टा 1 कह दिए डेल्टा कह दिए। सो कहने का मतलब कि यार मैं किसी एक रो एक रो के उपर ऑपरेशन लाया सीगा सैकेंड रो नूं किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करके उहदे च ऐड कीता सी तां उहदी डिटरमिनेंट की वैल्यू च कोई फर्क नहीं पिया। सो अपनी 6 प्रॉपर्टीज़ है जिहड़ियां मेन है। सो ये 6 प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड ही है जी अपनी एक्सरसाइज 4.2 है। सो मैं फस्ट सम है जिहड़े 1 तो 7 है उन्होंने करवान जा रहा तुहानूं ये ध्यान नाल देखने बच्चे। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन की है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। हाँ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फर्स्ट है क्वेश्चन 4.2 का एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये आप प्रूव करना है। सो ये भी देख ही रहा भी ये सम प्रॉपर्टी लगेगी सब तो पहले सम प्रॉपर्टी ला दी ये एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस हुण ये कॉलम के ऐड होया है ठीक है। आप जी की रो वास्ते की सो सेम चीज़ ही है। सो ए एक्स वाई जेड
A B C सो आप A कॉलम के मैंबर XYZ लिख लिए हम प्लस तो बाद जी वैल्यूज है वो A B C हम तुम ये देखो C1 तो C3 आइडेंटिकल है ठीक है इहदे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल इहदे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो आप हम प्रॉपर्टी करके आए हैं जे सैकेंड के थर्ड प्रॉपर्टी सी जे कोई दो रो या कोई दो कॉलम इको जे हो तो वैल्यू सीधी कितनी ला देनी है आप 0 सो इनका आंसर 0 आ गया आपको एक्सपैंड करने की ये कोई लोड़ नहीं सो प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन करना सी ये नहीं है क्वेश्चन सो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं सो बच्चे इहदे थोड़ी जी प्रैक्टिस की लोड़ है कई बच्चों को एक्सरसाइज औखी लगती होंगी है ये औखी नहीं गी ये थोड़ा जी प्रैक्टिस ज़्यादा मंगती है तुसी ध्यान नाल ये सामने समझने हैं इन्हों रिवाइज करना एग्जाम्पल्स भी हैगियां वो भी देखनिया सो ताकि है ये तुहानूं जिहड़ी है ईजीली एक्सरसाइज है जिहड़ी तुसी इहनूं ग्रास्प कर सको सैकंड क्वेश्चन है A माइनस B B माइनस C C माइनस A B माइनस C C माइनस A माइनस B C माइनस A माइनस B C इक्वल्स टू 0 चलो इहदे आप लैफ्ट हैंड साइड इहदे ऑपरेशन लाने हैं इधर देखो जी आप फर्स्ट कॉलम दे विच बाकी दोवें कॉलम ऐड कर दिए B नाल B कैंसल हो जाएगी A नाल A कैंसल हो जाएगी C नाल C कैंसल हो जाएगी मतलब 0 आ जाएगी इत्थे सिमिलरली सैकेंड अपने को सैकेंड फर्स्ट कॉलम के सैकेंड मैंबर वास्ते भी इस तरह जो ऐड होणगे तो इत्थे 0 आ जाएगी सो मैं इत्थे ऑपरेशन की लान लगा ऑपरेट C1 प्लस C2 प्लस C3 मैं पहले कॉलम के क्योंकि आप प्रॉपर्टी की हुई है फिफ्थ के सिक्स आप इस तरह लिख देंगे तो वैल्यू के डिटरमिनेंट से कोई चेंज नहीं आता इहदे हम A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A एवें B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B मैं पहले कॉलम के दोवें आ कॉलम फर्स्ट है ये कॉलम सैकेंड है ये कॉलम थर्ड मैं पहला कॉलम के दूजा तो तीसरा ऐड करता C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C बाकी कॉलम एज इट इज B माइनस C सॉरी B माइनस C माइनस A माइनस B C माइनस A माइनस B माइनस C सो इधर देखो C नाल C कैंसल B नाल B कैंसल A नाल A कैंसल C नाल C कैंसल A नाल A कैंसल B नाल B कैंसल A नाल A कैंसल B नाल B कैंसल आ C नाल C कैंसल कहने का मतलब 0 0 0 बाकी एंट्रीज एज इट इज तुसी लिख लोगे ठीक है वो वैल्यूज हुण जदों किसी डिटरमिनेंट दे विच कोई रो या कोई कॉलम पूरे का पूरा 0 हो जाना उहदी एंट्रीज तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू की आ जाती है 0 इत्थे तुसीं बाकी एंट्रीज एज इट इज इत्थे लिख देनी है सो ये अपना सैकेंड क्वेश्चन सीगा ईजी सीगा ये भी इक्वल टू 0 प्रूव करना सीगा नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ जी नैक्सट थर्ड क्वेश्चन है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 equals to 0 in the left hand side आप लेने हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 ते 86 बच्चे जे मैं हुण सैकेंड कॉलम ते सैकेंड कॉलम नूं थर्ड कॉलम नूं विचों 9 नाल मल्टीप्लाई करके सैकेंड कॉलम सबट्रैक्ट करदा तो इहदी डिटरमिनेंट दी वैल्यू ते कोई फर्क नहीं पैना
सो मैं इतने ऑपरेशन लाने जा रहा भी आह 2 3 5 7 8 9 ये चीज़ सानू आपके माइंड च कैलकुलेशन करके पता लगेगी भी ऑपरेशन किवें लाना है, प्रैक्टिस नाल पता लगेगा, इहदे विच रट्टा नहीं मारना, ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी। ये हुण मैनू की सीगा, इधर देखो जे मैं इन्हां नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करदा मैनू 65 चाहिए, इत्थे 9 नाल मल्टीप्लाई करूँगा मैं 63 आ जाऊगा, इत्थे 72 आ जाऊगा, इत्थे 81 आ जाऊगा। जो मैं सबट्रैक्ट करूँगा 65 के विचों 63 2 आ जाऊगा, 75 के विचों 72 माइनस करूँगा 3 आ जाऊगा, 81 के विचों 86 के विचों 81 माइनस करूँगा 5 आ जाऊगा। कहने का मतलब इत्थे 2 3 5 आ जाऊगा, तो इत्थे फस्ट कॉलम में भी 2 3 5 पिया, कॉलम फस्ट ते थर्ड है जो आइडेंटिकल हो गए, अपनी वैल्यू भी आ जानी है 0। इस तरह के होर भी सामने गए, तुहानूं अपने माइंड के कैलकुलेशन करके जो रो के कॉलम आइडेंटिकल करने पैणगे। सो वो इस तरह करने हैं बच्चे, और आफ्ताम के तुसीं करके देख सकते हो किन्नू किन्नू मल्टीप्लाई करिए, किस तरह रो नूं या कॉलम नूं मल्टीप्लाई करिए कि अपने को रो या कॉलम सेम हो जाए। सो इत्थे 65 हुण मैं तुहानूं इत्थे दस दिता सी 65 नूं 65 माइनस 7 नाम 63, 65 के विचों 63 गए 2, 75 8 नाम 72, 75 के विचों 72 घटाए 3, 86 नाम नाम 81, 86 चों 81 गए 5। कहने का मतलब की होया C1 and C3 are identical, so value of this determinant is 0। सो ये क्वेश्चन अपना थर्ड है, वो आप इस तरह सॉल्व करना सीगा। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन है अपने को फोर्थ क्वेश्चन है 1 1 1 BC CA AB A B plus C B C plus A C A plus B equals to 0 प्रूव करना। सो इनकी लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीए 1 1 1 BC CA AB मल्टीप्लाई करिए AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस CB। हुण इहदे ऑपरेशन ला दो C3 दे, C3 दे विच आपां C2 ऐड कर दिए या C2 च C3 ऐड कर लो। 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC प्लस BC AB अगे लिख लिए AB प्लस BC प्लस CA। चलो ये जिवें मर्जी जिस मर्जी ऑर्डर च लिख लो। ये भी अपने को CA प्लस CB प्लस AB आ जाऊगा भी। हुण देखो AB अपने को इहदे विच आया BC AB इहदे विच भी टर्म आई है, BC इहदे विच टर्म आई है, BCA आई है, CB ते BC बोथ आर सेम, AC आई है CA एक ही गल है। CA कहने का मतलब ये टर्म टेक AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3, ये आप हम कॉमन कढ़न लगे हैं। AB प्लस BC प्लस CA ये कॉमन कर दी अपने को 1 1 1 इत्थे BC इत्थे CA ते इत्थे AB इत्थे 1 1 1। हुण C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इनकी वैल्यू भी नहीं आ गई तुहाडे कोले 0 वैल्यू आ गई। सो ये क्वेश्चन बच्चे इस तरह करना सी। हुण जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है ते 7 है वो तुहाडे होमवर्क है। सो वो तुसीं ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है जिहड़े आपां वो नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे, वो 4.2 ही होगी अपने, क्योंकि बाकी जे सम होर रहिंदे आ। सो ये तुसीं जिहड़ा होमवर्क है ये कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।